Hello student. So yesterday we have finished our chapter human reproduction. Today we will discuss some important point of human reproductive system or revision and some specific terms from this chapter. So before we start revision lecture, we just revise some specific terms of this lesson. So basically, in this lesson, you have read the male reproductive system, the female reproductive system. कौन कौन से points read किए हैं? First, male reproductive system, female. Second point, female reproductive system. Third point, gametogenesis. Third, gametogenesis. Fourth point, menstrual cycle. Fifth point, fertilization. Fertilization and implantation. Then pregnancy. Or embryo development. Then 7 point, parturitions and lactations. So this is the main important topics of this chapter. In this chapter, this is very important, स्पेशली एट नंबर का ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें तकरीबन 18 नंबर का कवरेज रहता है पूरा ये रिप्रोडक्शंस में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर सम हार्मोनल कंट्रोल यू हैव टू रीड कि क्या हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेम ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, और उसका फंक्शंस. Then in male reproductive system you will read accessory duct, ठीक है, glands, external genital and testes. In female reproductive system you have read female reproductive system में ovaries, then oviduct, uterus, cervix, vagina, external genital and mammillary glands. You have read mammillary glands in detailed diagram with explanations. Then you have read third one is structure of sperms, where again you we have already discussed functions of acrosome, functions of middle piece which is full with mitochondria, energy producing organisms. We have discussed all this point. Then we have discussed gametogenesis, spermatogonia, ठीक है, spermatogonia, then primary spermatocyte, then secondary spermatocytes, then spermatids, then spermiogenesis and spermiation. Spermiations, these terms are very 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 light or very small differentiation there. So you will read this term very carefully. After that you have read gonadotropes, इसमें releasing hormones GnRH and its work, कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज़ कर रही है मेल में भी एंड फीमेल में भी, ठीक है. ये क्या है, हाइपोथैलेमिक है हार्मोन्स है, और ये दो हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, कौन कौन से, FSH और LH. मेल में फीमेल में दोनों में ही सेम हार्मोन हो रहा है, ठीक है. बट फीमेल में मेल में जो ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन ऑफ ल्यूटिजाइनिंग जो है ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, लीडिंग सेल के ऊपर. किसके ऊपर वर्क करता है, लीडिंग सेल के ऊपर.
और FSH वर्क कर रहा है सर्टोली सेल के ऊपर, सर्टोली सेल, और ये दोनों अल्टीमेटली किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और लीडिंग सेल इज जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन after that you have read structure of ovary, sections view of ovary, where we have already discussed ovary diagram, and process of ovulation we have already discussed, corpus luteum. After the ovulation, corpus luteum is formed and mature ovum is covered with zona pellucida and Graafian follicles, ठीक है, जोना पेलिसिटा. देन वी हैव डिस्कस menstrual cycle, so we will again repeat menstrual cycle after with the help of figure. Then we have read fertilization, implantations, ठीक है, मीना corpus luteum, menopause, menarche, these terms we have already discussed. Then after embryogenesis we have discussed two cell structure, four cell structure. Two cell structure form in 30 hours, four cell structure is formed 48 hours, 16 cell structure or 8 cell structure is formed 16 hours, and after the 7 days of fertilization, implantations process going on, we have already discussed. So now we will start conclusions point or revision. Now human are sexually reproducing and viviparous. ह्यूमन एक ऐसा है जिसमें कि एक ही प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये इट इज़ नेचर वाइज कैसा है, विविपेरस. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज composed of pair of testes, a male sex accessories duct and external genital. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप रीड करोगे तो इन 4 पॉइंट्स पर रीड करना है. a male accessories duct, testes, accessories duct, accessories gland and external genital. ये 4 टर्म्स को इंडिपेंडेंटली आप लर्न करोगे. एक्सटर्नल जेनाइटल में कौन से पार्ट आ रहे हैं, मेल सेक्स एसेसरीज डक्ट में कौन से पार्ट हैं, एसेसरीज ग्लैंड्स में कौन से पार्ट हैं और उनका क्या फंक्शन है. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, or lobules is contained, and each lobules contain 1 to 30 highly coiled seminiferous tubules. These seminiferous tubules is lined side by spermatogonia and Sertoli cells. The spermatogonia undergoes meiotic divisions leading to sperm formation. Sertoli cells spermatogonia को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. तो तीनों सेल का स्पर्मेटोगोनिया सेकंड Sertoli cells and Leydig cells. First we will write Sertoli cells. Third, Leydig cell. You will read each and every terms. ठीक है स्टूडेंट, ये टर्म्स के फंक्शंस कहाँ हैं और क्या इनका फंक्शन है. द लीडिंग सेल आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. लीडिंग सेल क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड पर होती है. ये क्या कर रही है, इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन. लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, एंड्रोजन्स. ठीक है. The male external genital cord penis. The female reproductive system consists of pair of ovary, pair of oviduct, uterus, vagina, external genital and pair of mammillary gland. This is the part of the female reproductive system. Ovaries produce the female gametes and some steroids hormone. Ovary क्या कर रही है,
ओवम देती है एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन्स, इट इज़ कॉल्ड एज ओवेरियन हार्मोन. कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स. So we will discuss what is we have already discussed ovarian hormone. So the next point is ovarian follicles is different stages of development are embedded in this stroma. The oviduct, uterus and vagina are the female accessories duct. Accessories duct में क्या आ गया? oviduct, second uterus, third vagina, और जो सर्विक्स अल्टीमेटली किसके थ्रू ओपन हो रहा है? विजाइना के थ्रू. द यूट्रस हैज़ 3 लेयर. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. कौन कौन सी लेयर है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और इनर लेयर एंडोमेट्रियम. द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल में 4 पार्ट्स हैं: मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरस. क्लाइटोरस इसमें एक्चुअली मेल एंड फीमेल का ओरिजिन सेम है. तो मॉन्स प्यूबिस और लेविया मेजोरा और लेविया जो माइनोरा है, बेसिकली ये इस फीमेल स्क्रोटम से इसका ओरिजिन फीमेल स्क्रोटम का जैसा है. फीमेल स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस होती है. एंड क्लाइटोरस इट इज़ जस्ट लाइक मेल पेनिस. क्लियर स्टूडेंट? क्लाइटोरस सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल में. द मेमिलरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर. स्पर्मेटोजेनेसिस result in the formation of sperm. They are transported by the male sex accessories gland. Normal human sperms is composed of, this is the structure of sperms. कौन कौन सा है? sperms का बेसिकली कौन कौन सा पार्ट है? फर्स्ट हेड, सेकंड नेक और मिडिल पीस, थर्ड मिडिल पीस, एंड टेल. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis. रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट चैप्टर में आपने रीड किया है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कंटिन्यूस ब्रीडर्स, जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उसमें वो ऑस्टो साइकिल, ऑस्टोजेनेसिस होता है. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में आपने रीड किया हुआ है ये टर्म्स. ठीक है. इसमें कंटिन्यूस, इसको ऑस्ट्रस साइकिल. ठीक है. 2 साइकिल आपने रीड किए हुए हैं. कौन कौन से? ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कंटिन्यूस ब्रीडर में हो रहा है, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, और ये सीजनल ब्रीडर. क्लियर स्टूडेंट? ये प्राइमेट्स में होता है. किस में हो रहा है? प्राइमेट्स. ठीक है. तो 2 साइकिल हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं स्पेशली फीमेल में. ठीक है. सो मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट आफ्टर द अटेंडिंग सेक्सुअली मैच्योर प्यूबर्टी पीरियड से स्टार्ट होता है. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओनली 1 ओवम इज रिलीज. हमेशा ध्यान रखना, एक ओवरी ही वर्क करेगी, उससे एक ही ओवम रिलीज होगा पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड होते रहते हैं. ठीक है. साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज ऑफ लेवल ऑफ प्यूबर्टी एंड ओवेरियन हार्मोन. क्या कह रहे हैं? जो साइक्लिक चेंज हो रहा है हर मंथ में, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? ओवरी में चेंज हो रहा है. किस में चेंज हो रहा है? ओवरी में एंड यूट्रस में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है ओवरी बाहर की ओर है और यूट्रस ओवरी एक लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड है. ठीक है. और देन यूट्रस है. तो यूट्रस ओवरी 2 डिफरेंट पार्ट है. ठीक है. तो यूट्रस ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में पिट्यूटरी हार्मोन्स मीन्स GnRH और ओवेरियन हार्मोन्स का क्या चेंज होता है? ये
चेंज हो रहा है, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज हो रहा है, ठीक है। जब जिस हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है वो हार्मोन्स इसी समय रिलीज हो रहा है। आफ्टर क्वाइटिस स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द जंक्शंस ऑफ isthmus isthmus ampulla, it is part of oviduct। किसके पार्ट है ये? ओविडक्ट के, ठीक है। फैलोपियंस पार्ट, फैलोपियंस के पार्ट है, फैलोपियंस ट्यूब के। तो ये कहाँ हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि फर्टिलाइजेशंस कहाँ हो रहा है? जंक्शंस ऑफ isthmus एंड एम्पुला। ये फर्टिलाइजेशन वो है फैलोपियंस ट्यूब में भी कहाँ पर है? जंक्शंस ऑफ isthmus एंड एम्पुला, वेयर द स्पर्म फर्टिलाइज्ड ओवम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट ऑलरेडी गिवन देयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ एक्स बाय क्रोमोसोम्स, द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। एक्स क्रोमोसोम से फीमेल, एक्स वाई क्रोमोसोम से तो मेल। The zygote undergoes repeated mitotic division to form blastocyst, which is implanted in uterus। blastocyst के फॉर्म पर जब कई सेल 16 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है, 8 सेल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, और दिस इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, इम्प्लांटेशंस इज अ इंडिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्या इंडिकेट करता है? प्रेगनेंसी। After 9 months of pregnancy, the fully developed fetus is ready for delivery. The process of childbirth is called parturitions, which is induced by complex, किस तरीके से ये वो हो रहा है? न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो सिस्टम और ऑक्सीटोसिन जो एक हॉर्मोन्स है वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, दीज आर द ऑक्सीटोसिन एंजाइम्स। किस हार्मोन्स किसके लिए यूज़ हो रहा है? पार्ट्यूरेशंस के समय पर, चाइल्ड बर्थ के समय पर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ mammillary glands is differentiated during pregnancy and secrete milk after childbirth. The newborn baby is fed milk by mother lactation. So jitne terms we have already discussed all terms, and this chapter you will read very carefully during our initial few months of growth. Clear student? Now I will again revise this figure. ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है और बेसिकली इसमें हम क्या रीड कर रहे हैं? वेरियस इवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से इवेंट उसमें, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये है यूटेरियन इवेंट, मतलब यूट्रस में होने वाली, ठीक है, यूट्रस में होने वाली जो हैपनिंग्स है, ठीक है। ये क्या है? ओवेरियन हॉर्मोन्स लेवल, ओवरी से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये ओवेरियन इवेंट्स मीन्स ओवरी के अंदर होने वाली प्रोसेस। और ये क्या है? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स लेवल, पिट्यूटरी जो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है। तो यू विल रीड दिस चैप्टर इन फॉलोइंग इवेंट, और मीन्स इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, एक पिट्यूटरी हॉर्मोन्स लेवल, सेकेंड ओवेरियन इवेंट, और थर्ड वन इज ओवेरियन हॉर्मोन्स लेवल, फोर्थ वन इज यूटेराइन इवेंट। तो इनको हम 4 हैपनिंग्स कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली हो रही है। सो वी विल रीड, ये फर्स्ट हैपनिंग है, वी विल रीड ऑल, ये सेकेंड हैपनिंग है, ये थर्ड हैपनिंग हो रही है, थर्ड पॉइंट्स, और दिस वन इज फोर्थ। क्लियर स्टूडेंट? और ये जो फोर्थ पॉइंट है यूटेराइन लेवल, इसमें बेसिकली ये भी डिवाइड हुई है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो कर रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस उसमें है? फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशंस, फिर सेकंड फेज इज फॉलिकल फेज और प्रोलिफरेटेड फेज, थर्ड वन इज ल्यूटिल फेज, फोर्थ वन इज नेक्स्ट साइकिल की स्टार्टिंग, ठीक है। सबसे पहले वी विल डिस्कस दिस वन यूटेराइन इवेंट। तो
यूटेराइन इवेंट जो प्रीवियस जो बिफोर मंथ में जो एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्म हो जाती है, थिक हो जाती है, वो वॉल ब्रेक डाउन होना शुरू हो रही है, ठीक है, ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो रहा है और वो मेंसेस के फॉर्म पर, मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म पर फर्स्ट से फिफ्थ डे के बीच में वो स्टार्ट होना शुरू होते हैं. तो ये ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम और ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड वेसल्स. कितना फ्लो निकल रहा है ये भी एक हेल्दी फीमेल में और एक सफरर फीमेल में डिफरेंट होता है, ठीक है. तो डॉक्टर्स आइडेंटिफाइड करते हैं कि फ्लो भी एक रेगुलेट अमाउंट्स में होना चाहिए, ठीक है. जैसे ही मेंसेस साइकिल कंप्लीट होता है 5 डेज के बाद, अब आ जाती है फॉलिक्यूलर फेज. फॉलिक्यूलर फेज का मतलब ये वाला ओवेरियन इवेंटी वाले शुरू हो जाते हैं. फर्स्ट डेवलपिंग फॉलिकल, अब उसके चारों तरफ फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है. मैच्योर फर्स्ट लेयर फॉर्म हो रही है, सेकेंड लेयर फॉर्म हो रही है और मैच्योर फॉलिकल फॉर्म हो रहा है जिसमें एक एट्रियम, ये एट्रियम एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये एट्रियम फॉर्म हो रहा है और इस चारों तरफ कई सारी लेयर फॉर्म होती है जो कहलाती ग्राफियन फॉलिकल्स और मैच्योर फॉलिकल्स. तो ये फॉलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स द रीजन इट इज़ कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज. और प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की भी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटेड फेज. तो दो वर्क हो रहे हैं, ओवरी डेवलप हो रही है और यूटेराइन वॉल डेवलप हो रही है, तो दिस इज नोन एज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटेड फेज. आर यू क्लियर स्टूडेंट? जैसा नेम है वैसे ही वर्किंग हो रही है. अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इट्स फॉर्म आ कॉर्पस लूटियम, ठीक है. और फिर कॉर्पस लूटियम हेल्प कर रहा है, जो चूंकि कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो रहा है लूटियम, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज, ठीक है. ल्यूटियल फेज के बाद फिर ये कॉर्पस लूटियम का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो रीग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल देखेंगे. अब यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, धीरे 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 ये इसका लेवल बढ़ रहा है और ओव्यूलेशन के दिन पर जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है. तो इससे क्या शो हो रहा है, एस्ट्रोजन किस में हेल्प कर रहा है, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन में. एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसके ऊपर वर्क कर रहा है, ओव्यूलेशन. क्लियर स्टूडेंट? अब ओव्यूलेशन हो गया, कार्पस लूटियम फॉर्म हुआ और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया, ठीक है. एस्ट्रोजन का वर्क यहाँ पे फिनिश हो गया. अब आया प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और कार्पस लूटियम जब एक लेवल तक ये तैयार हो गया, इसका यूज़ नहीं हुआ और ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया. तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम को फॉर्म कर रहा है और सेकेंडली प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बेसिकली किस में हेल्प कर रहा है, इट्स मेंटेन प्रेगनेंसी. क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर द टू हार्मोन्स विच इज इंडिपेंडेंटली वर्क, ठीक है. So this is the basically menstrual cycle and happenings of the menstrual cycle. So I think students अब यहाँ पे कोई problem नहीं होगी. So now today we will just complete our chapter. Next lecture will be new chapter. Okay students, today I have just given you homework. So submissions day, 2 days we have to give you homework and submission day will be 18th May on Monday. So before you submit, before due date, you will complete or submit your homework. Thank you, student. Have a nice day.